आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए। So, series. When we talk about series of real number, it means what? We have covered almost 50% of sequences. जो sequence topic है उसका 50% almost हम लोगों ने cover किया अभी तक. What we need to know in sequences, it is still continue. कि sequence अभी हम इतना ही जाने कि sequence होता क्या है या sequence होती क्या है, ठीक है? जो होता है होती है जो पता नहीं, साउंड के हिसाब से मालूम चलता है, बट वहां भी दिक्कत है. दिस इज अ प्रॉब्लम इन हिंदी विथ साउंड एंड जेंडर. बंदूक होती है, संदूक होता है, बट सेम साउंड, ठीक है. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है. सो सीरीज, वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर लाइक दिस an. A function from n to r will define a sequence of real number, and then image of 1 a1 and a2 and so on. When this arrangement we have in this order, we place the images in their natural order, that is starting with the image of 1 and so on, then we get a sequence. Since they are real numbers and we know real set of real number is a field, the element of a field can be added, multiplied, divided if it is non-zero. These properties are there in a field of real numbers, so we can add these numbers. Though sequence can be of anything, sequence map from n to anything will give you a sequence of anything, है ना? And what is anything? It's anything, है ना? We can have arrangement only this first, second, third. But when we talk about plus, अब how can you add any two things? Apple 1 plus apple 2. We are 2 apple. We are not adding apple, we are adding number. 2 apple plus 3 apple. Apple is only 1, but its multiple is 5. It is not a big apple of 5. If this is apple, then this is combined. Today morning, I was watching interview of Mr. Rajnath, Home Minister Rajnath, on Aaj Tak. So, I know Rajnath personally. बहुत टाइम से, जब वो शिक्षा मंत्री थे यूपी में, तब से. So today in the interview, he used one single word, कि when these two parties are together, both are minus, and minus minus is not plus. He used the sentence today in the morning. He's a physicist, he's a professor of physics, so he was not incorrect, but he was absolutely correct. He said, see, these two parties are already minus, and what they are thinking, minus minus plus. So Rahul said, that Rahul Kanwar, who was the anchor, he said, sir, minus minus plus hota hai. They see, minus plus minus is minus, minus into minus is plus. Because in the morning, sir, I was taking breakfast. So minus into minus is plus. It's not minus plus minus is minus. So वो कह रहा था कि see, this is minus, and when we add them, it is more minus. So they should not think that minus minus is plus. So Rahul, sir, but it is no minus minus plus. When it is multiplied, that means when these two parties merge, then he explained the multiplication. When these two parties they merge together, that can be taken as a multiplication. But when they are parallel, so obviously independent are added, dependent are multiplied. Isn't it? Even in probability we know
एंड इन एंड केसेस दे आर मल्टीप्लाइज, इन और केसेस दे आर एडेड. सो जब आप इंडिपेंडेंट डील करते हो तो आप ऐड करते हो, जब आप डिपेंडेंट करते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो. तो मुझे लगा कि ये अब समझ में क्या आ रहा होगा दोनों की. वो तो खैर फिजिक्स के आदमी, ही वाज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन यूपी ज्ञानपुर. कौन सी यूनिवर्सिटी है, समवेयर जौनपुर में कोई यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसर रहे हैं वो फिजिक्स के. काफी लोग फिजिक्स के हैं, मैथ्स के लोग इसीलिए पॉलिटिक्स में जाते हैं उनको. अब ऐसे ऐसे लॉजिक आएंगे तो क्या करेंगे बेचारे, सारी पीठ पकड़ेंगे कि obviously there we have to prove, we will prove that 2 plus 2 is not always 4, is it? Suppose after election Congress and BSP together form the government, not SP, what will happen? They are fighting against 20% vote suppose Congress and 25% vote suppose BSP, and they form government together, that the government has 45% support. No, because that 20% were against each other, that 25% is against each other. So we cannot simply add that 20% support to this, 25 to this. That means 2 plus 2 is not always 4. 20 plus 25 is not always 45. है ना? क्या यहां पर जो टर्म आ रहा था कि when we emphasize sequence of real number, we mean that it is a field. Sequence of complex number, we mean that we are looking for a sequence of series of a element which belong to a field, so that they can be added, multiplied, then only you can talk about linear combination, product, division. तभी कर पाए थे ना. But sequence कहीं भी define कर सकते हो. When we move into series, then it is always from a field. Clear? Now, this is sequence. When we add all the terms, this expression, the infinite sum, though it is not the meaningful sentence, infinite sum is always a finite, but this expression which represents infinite sum is called series. This is series, this is sequence. Now to handle this series, what we do, we define another sequence Sn, S1 comma S2. This is sequence. What is S1? The first term. S2 the sum of first two terms, first 3 terms, and called SOPS. This Sn is called the SOPS of summation An. Every summation has a unique SOPS, but in the given form. In the given form. You don't have right to rearrange or insert brackets wherever you want. जैसे ये लिखा हुआ था 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 and so on. This is not a sequence. This is series now. Infinite sum. Keep on. Now you want to handle this. 1 minus half add kiya, what is now? Half. Then subtract 1 by 4 and keep on doing so, add, subtract, subtract. So at any stage you will get some number. The question, what is the ultimate? Ultimately where we will converge? We are adding ना, तो लगता है कि काम ना करें, ऐसे ऐसे कर लें, सब पॉजिटिव हो गया, सुंदर भी लग रहा है. माइनस ये 1 by 2 plus 1 by 12. The question is, still we'll get the same sum. Simple question. नहीं, काम करते ना 1 और 1 by 3 एक साथ कर लेते, फिर this 2 positive 2 negative in this way. So we try to rearrange terms. While rearranging the members of sequence, they come forward or go backward. The arrangement is disturbed. The moment arrangement is disturbed, and I'm saying here SOPS, it is first term, sum of first two term. This first two, now it depends on the arrangement. So this sequence Sn will be different. For different arrangement of terms of this sequence, the sequence Sn will be different. Correct. So when we talk about sequence, we have An, the function, which gives the nth term of series summation An, and with the help of this series, we define Sn. Now, Sn is sum of first n terms. What happens when n tends to infinity? Now, limit of sequence Sn is meaningful concept. We know what is sequence, what is limit. When n tends to infinity, Sn, suppose it converges to L, say, Sn tends to L. This L means what? The sum of n terms tends to L. That we can say this infinite sum, so-called, this, if we keep on. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
on adding like this, if limit Sn equal to suppose L, yeah, say S, that means what? This sum tends to S. This is called sum of the series. The limit of SOP is defined as sum of the series, है ना, defined as. आप समझ रहे ना, 2 plus 2 equal to 4. 4 is defined as sum of 2 plus 2, 2 and 2. No, it is calculation, it is. But for infinite, it has to be defined. Got the idea? So पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था. We have defined series and then SOPS. देर बेटा, this SOPS और उसके बाद डेफिनेशन कैरेक्टर भी डिफाइन कर दिया था ना. व्हाट इज कैरेक्टर ऑफ अ सीरीज? मींस दैट ऑफ इट्स एसओपीएस. किसी सीरीज की चर्चा करनी है, किससे करते हैं? उसकी एसओपीएस से. डोंट गेट कंफ्यूज विथ सीक्वेंस 1/n एंड समेशन 1/n. सीक्वेंस 1/n means this an equal to 1/n, 1, 1/2, 1/3 and so on, where an is tending to 0. What is an? 1/n. कहां जा रहा है an? 0 पे. But when we talk about summation an, and then Sn will define the character of summation an. That is what? S1, S2, S3. Sn कहां जा रहा है? That will give you idea कि summation an कहां जा रहा है. Got difference? जैसे an is 1/n tending to 0, but summation 1/n tending to infinity. क्यों? क्योंकि इसकी SOPS वो अनबाउंडेड है. कंफर्म? वो कॉशी सीक्वेंस नहीं है इसकी एसओपीएस. तो उसी पे काम करते हैं. ठीक है, यहां तक. तो हमने कल कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन यू आर गिवन अ सीरीज एंड यू, तो तीनों चीज एक साथ लिखेंगे और तीनों को एक साथ देखना भी. एग्जांपल नंबर 1 कुछ दिया था. एग्जांपल 1 क्या था? एन बताओ. एन एन, अच्छा n+1. So what is limit an? Limit an पक्का? क्यों? n टेस्टिविटी 0 हो रहा है. हाँ, सैंडविच से कर लो. सैंडविच से कर लो, ठीक है. सैंडविच से कर लिया, आर्किमिडियन से कर लिया. सैंडविच से कर लिया, ये पता है 1/0 पे. नहीं तो फिर सीधे सीधे an - 0 is less than 1/n, less than whenever n is greater equal to m. Done. For any epsilon there is m such that 1/n is less than epsilon for all n get equal to m. So this is less than epsilon for all n get equal to m. So this is what? Limit. So sequence 1/n into n+1 tends to, this is 0. डन. जैसे भी ये सब खेल आपको आना चाहिए. हाउ टू इंट्रोड्यूस एप्सिलॉन, ये इनइक्वालिटी कैसे मैनेज करेंगे, ये आपको आना चाहिए. भले साफ साफ दिख रहा हो, इसलिए यू नीड टू राइट. ठीक है. नाउ समेशन an, अब इसकी बात ही हो रही है. an की बात होगी, समेशन an. बट टू डिस्कस समेशन an, व्हाट वी नीड टू डिस्कस? Sn. व्हाट इज Sn? Sn is 1 into 1/2 plus 1/2 into 3 and so on, 1/n into n+1. This is SOPS. A1 plus A2 plus A3 plus an. ठीक है. एंड विच इज इक्वल टू 1 - 1/2 plus 1/2 - 1/3 and so on, 1/n - 1/n+1, which is 1 - 1/n+1. दिस इज Sn. नाउ अब फिर सीक्वेंस पे पहुंच गए हम लोग. तो सीरीज तो इंटरमीडिएट टर्म है केवल. अगेन वी आर ऑन सीक्वेंसेस. नाउ mod Sn - 1 is equal to 1 - 1/n+1 - 1. This is equal to 1/n+1, which is less than 1/n less than. So limit Sn is what? 1. यह साफ दिख रहा था, फिर भी क्लासिकली एप्सिलॉन m गेम. So what we say? Summation an converges to 1, or the sum of summation an is 1. Done? Second example.
an equal to 1 upon n. This implies sequence an tends to 0. Limit an is 0. Now summation an. ऐसे ये बी वेरी कॉशियस ओवर लैंग्वेज सिंबल समेशन an कैरेक्टर, ये यहां पर क्लैरिटी के साथ आना चाहिए. मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं वो पढ़ते समय ना वो क्लैरिटी नहीं है जब वो बोल रहे होते हैं सेट को, सब सेट को, इंटरसेक्शन को, सब डिफरेंस को फोर्स लगाते हैं तो क्लियर हो जाता है, बट दैट फर्स्ट इंस्टेंस वो दिमाग में नहीं आता ये पिक्चर क्या है. तो बी वेरी क्लियर ओवर सीक्वेंसेस, सीरीज, एसओपीएस, एक्सप्रेशन की कौन सीरीज का एक्सप्रेशन है, ये जैसे डॉट 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 ये सीरीज एक्सप्रेशन है. नाउ व्हाट इज एस एन? Now Sn equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by n. Sequence Sn. इसकी चर्चा हो रही है as example number 23 of our list. है ना? सीक्वेंस की लिस्ट है मेरे पास तो. And there we have proved S2n minus Sn. This was greater than 1 by 2. Hence sequence Sn is not Cauchy. So sequence Sn is not convergent. So summation Sn an is not convergent. But limit an is 0. Interesting है कि but sequence an is convergent. Summation an is not convergent, but sequence an is convergent. Confirm? Sequence an is convergent. Next example, an equal to n, and this implies sequence an is not convergent as has two limit points. ये रीजन भी समझ में आ गया. कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है तो मालूम चलना चाहिए. दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट बिकॉज इट हैज टू लिमिट पॉइंट 1 and -1, दो इट इज बाउंडेड बट इट हैज टू लिमिट पॉइंट. क्लियर? नाउ summation an, it is 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1. This, what is Sn now? Sn define करते हैं. 0 when n is even and -1 when n is odd. Sequence Sn has two limit points. Two limit point. So sequence Sn is not convergent, rather oscillatory. जो सीक्वेंस Sn होती है वही समेशन an होता है. तो and hence summation an is not convergent. Not convergent. Oscillatory being precise. डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट तो अच्छा है सीरीज में. सीरीज में ऑसिलेशन बोलने में तकलीफ होती है. हमें हम भी नहीं मना कर रहे, हमें लिखवाया है ठीक है कि द कैरेक्टर ऑफ समेशन an इज सेम एज दैट ऑफ Sn. इफ Sn इज कन्वर्जेंट समेशन an इज कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी देन an इज ऑसिलेट एंड सो ऑन. दैट इज द रिलेशनशिप. बट यू हैवंट सीन, आप देखिएगा ढूंढिएगा नहीं मिलेगा आपको समेशन an के ऑसिलेशन पे डिस्कशन. नहीं अपन तो देख ही रहे हैं, अरे अपन लोग तो होशियार लोग हैं, कुछ भी करते हैं यार ठीक. बट इन जनरल ऑन लिटरेचर इट इज रेयर अवेलेबल. लिटरेचर बहुत काम नहीं किया था इसके ऊपर ठीक है. हाँ देखिए तीन चीजें हैं. एक सम मिल रहा है, एक सम नहीं मिल रहा है. जब सम मिल रहा है तो कन्वर्जेंट. सम की बात आ गई अब तो ना कि ये सम कहां जा रहा है. 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 करते रहे कहीं जा रहा है. तो सम कहीं जा रहा है ये जानना, या फिर सम नहीं मिल रहा है ये जानना. जब सम नहीं मिल रहा है तो वजह जानना कि इट इज नॉट फाइनाइट और इट फ्लक्चुएट्स बिकॉज वी आर एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग व्हाट एवर द रीजन ठीक है. इट फ्लक्चुएट्स. देन व्हेन वी से समेशन an इज ऑसिलेटरी इट मींस द सम फ्लक्चुएट्स. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more. When summation an is divergent, it means sum can be made as large as we please. After this term it will more than this, after this term it will more than this, but which is oscillatory, it is not so. आपने इतने टर्म के बाद सम ये है, थोड़ी टर्म और ले लोगे सम कम भी हो सकता है, इसमें यही हो रहा है. So that is the concept of oscillation. Clear? Clear है ना ये? Next example. a n equal to minus 1 to the power n plus 1 into 1 upon n, है ना? Sequence a n is convergent, true, and limit a n is 0, that is also true. पक्का? Reason? हाँ, दोनों माने अच्छा ऑड इवन, अच्छा अंडरस्टूड. आगे से दोनों मतलब ऑड इवन हो गया, ठीक है. इसकी दोनों सबसीक्वेंस वहां जा रही है मतलब ऑड इवन की, तो ये स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं ना, ठीक है. ये भी दोनों जीरो पे जा रही है, ऐसे भी नहीं तो आपका एप्सिलॉन एम तो है ही कि मॉड ऑफ दिस माइनस जीरो is equal to 1 by n and that is less than epsilon whenever n is greater equal to m. So by that also you can claim this sequence is convergent. Now summation a n equal to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on. Remember to add this like this always, make dot 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 expression for series. And what is Sn? Sn equal to 1 minus 1 by 2 and so on minus 1 to the power n plus 1 into 1 upon n. So this is our example number 24 in our list. ये R list तो याद ही रहनी चाहिए, ठीक है. पक्का 24 ही है. Is convergent and limit Sn is log 2, remember? याद है ना? Hence summation a n is convergent and sum of summation a n is log 2. अच्छा, जो सीरीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको जो मालूम चलते जाए ना, जितने भी क्लास में एग्जांपल्स होते हैं ये लोगों को याद रहते हैं. जिसको ये याद नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. क्या धमकी देने का फायदा कुछ, ठीक है. ये याद रहने चाहिए, आपको चाहिए, मतलब मस्ट है, समझ लीजिए. और देन लेटर इट विल बी यूजफुल टू कंपेयर, एटलीस्ट फॉर पॉजिटिव. जितने पॉजिटिव वाले हैं ना उनको तो रट्टा मार लो कि ये कन्वर्जेंट है. दिस शुड बी अ गुड सेट ऑफ एग्जाम्पल फॉर यू. एटलीस्ट यू शुड नो कि ये मेरे पास है जिनके बारे में मुझे पता है ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं है. दोनों इस टाइप एग्जाम्पल है, इनके बारे में दोनों चीजें देखिए. एक तो मेथड ये होता है जो कन्वर्जेंट है उनको याद रखा जाए, आपको थोड़ी खुद इस्तेमाल करना है. आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कौन सी है या कौन सी नहीं है. आपको उनका कलेक्शन नहीं बनाना जो कि कन्वर्जेंट है. एक पॉजिटिव सेंस होता है ना कि हम दिमाग में वो रखते हैं जो कन्वर्जेंट है, जो होती है तो उस पर तो अच्छा लगता है, चलो ये तो अच्छी है, कन्वर्जेंट है. ये आपके सेंस में अच्छा बुरा नहीं होता. सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल दो सीक्वेंस वी आर राइटिंग हियर आर इंपॉर्टेंट and you should know whether they are or they are not. Like you have written summation 1 by n is divergent series. देखा ना अभी आपने, summation 1 by n is a divergent series. Remember this. Summation minus 1 power n into which is this, अभी ये लिखा ना आपने, is convergent. This is convergent. Confirm? समेशन 1 अपॉन क्या है, साइन 1 बाई एन. अच्छा, अब इस एग्जांपल में देखिए, थोड़ा सा कोर एनालिसिस का करते हैं. आई एम नॉट गिविंग एनी कंपैरिजन और दिस टेस्ट और दैट टेस्ट सो फार. कोर बेसिक समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स एसओपीएस इज कन्वर्जेंट. डन. यही तो है ना मेरे पास. देखिएगा, मुझे ये तो मालूम है समेशन 1 बाई एन इज डाइवर्जेंट. Why? SOPS SN 1 plus 1 by 2 and so on 1 by n is greater for this, then S2 raised power n is greater than. ये सब इंफॉर्मेशन काम की है, कौन से कहां इस्तेमाल हो जाए देखना. ये तो ठीक है ना. अब सुंदर, बहुत सुंदर.
ये पाई बाई 2, ये 1, तो ये थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई बाई 2, टेन थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन पाई 2, दैट इज 2 अपॉन पाई, टेन थीटा 2 अपॉन पाई, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू mx, व्हाट इज m, टेन थीटा, y इक्वल टू mx, ये टेंजेंट एट ओरिजिन, ये y इक्वल टू x, पक्का ना। अब इन तीनों को देखो, इनके बीच में जब x 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, सबसे बड़ा कौन है, ये वाला फंक्शन, फिर उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। सो व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, साइन x बीच में, यहां पर 2 अपॉन पाई x और यहां पर x। इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, किसी पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ना, ये तो y की वैल्यू है ना, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू साइन x। अब किसी पॉइंट पे ये वाला पॉइंट लिया, यहां पर x इक्वल टू दिस इज y1, y2, y3, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा तो ये आएगा, ये वाला y इक्वल टू एक्स है ना, ये तो y की वैल्यू है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू दिस, तो y1, y2, y3 लिखा हुआ है, ये होगा। इसे कहते हैं जॉर्डन्स इनइक्वालिटी, है ना, याद है बचपन में पढ़ा होगा, कहा हमने कब बताया था, हम अब बचपन में कब मिले, ठीक है ठीक है, अरे जो भी कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये है ना। सो इसमें बट x तो क्या होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, तो नाउ पुट x इक्वल टू 1 बाई n, तो वी हैव 2 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन n प्लस साइन इज लेस देन साइन 1 बाई n इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई n, है ना, पक्का। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जो लिख रहे थे हम, a n इक्वल टू साइन 1 बाई n और फिर समेशन a n लिखा हमने, लिमिट a n इक्वल टू 0 दैट वी नो, सीक्वेंस a n इज कन्वर्जेंट वी नो, बट द क्वेश्चन इज ऑफ समेशन a n, है ना, क्वेश्चन इज ऑफ समेशन a n। तो एस एन इक्वल टू साइन 1 प्लस साइन 1 बाई 2 एंड सो ऑन साइन 1 बाई n, ठीक है, एंड दिस इज, देखना इससे छोटा कौन है फॉर ऑल n, तो मैं लिख रहा हूं इसको 2 अपॉन पाई प्लस 2 अपॉन पाई इंटू 1 बाई 2 प्लस 2 अपॉन पाई इंटू 1 बाई 3 एंड सो ऑन 2 अपॉन पाई इंटू 1 बाई n, लिख सकता है ऐसे। ये क्या हो गया, 2 अपॉन पाई तो बाहर आ गया, 1 प्लस 1 बाई 2 एंड सो ऑन 1 बाई n। तो s 2 रेज़ पावर n इज ग्रेटर इक्वल टू 2 अपॉन पाई 1 प्लस 1 बाई 2 एंड सो ऑन 1 अपॉन 2 रेज़ पावर n, एंड दिस आई नो इज ग्रेटर देन n बाई 2। ये इस अगर ये ऐसा होता है तो ये किससे बड़ा हो जाता है, तो क्या हो गया, है ना। पाई 3.3 से बड़ा है ना, अरे उल्टा कर दिया, बोल भी नहीं रहे हो दोस्तों, ठीक है, इतना तो है ही कम से कम मतलब लालच का अंत थोड़ी है कि सिंप्लीफाई कर ले और सिंप्लीफाई कर ले, बट आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। This confirms it is unbounded above. ये सब सीक्वेंस है कि नहीं किसकी? Sn की. This implies sequence Sn is not bounded, hence not convergent, hence summation An is not convergent. Confirm? So summation sin 1 by n is not convergent, though sequence sin 1 by n is convergent and converging to 0. मैं इसको एक बार और प्रूफ करूंगा सिंपल स्टाइल में, बिल्कुल सिंपल। ये तो इंप्रेशन मानने के लिए कि ऐसे भी कर सकते हैं, केवल होशियारी दिखा रहे हैं जॉर्डन इक्वलिटी की और ये और वो। इसको ये यहां तक ठीक है ना। अब इसको रोक लो अलग, इसको नाम दे दो an, इसको पूरे को an नहीं, कुछ अल्फा n, दिस इज अल्फा n। और ये आप एग्जांपल नंबर 23 है, वहां प्रूफ किया था कि अल्फा 2n जो है किससे बड़ा है? n/2 से बड़ा है। तो मैंने इसकी जगह n/2 रख दिया, तो ये छोटा हो गया इधर बराबर। दिस s2 इज ग्रेटर देन, कंफर्म। और इसको जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो, इसका इस्तेमाल किया, ये इंफॉर्मेशन बड़ी काम आ गई है ना। ठीक है, समेशन sin 1 by n is, that is summation sin 1 by n is not convergent। ठीक है ना। आपको सीरीज दी जाएंगी और उन पे पूछेगा कन्वर्ज कर रहे कि नहीं कर रहे, ये सब गुणे भाग होने वाले हैं। ट्राई टू फाइंड मेथड्स, मैकेनिज्म एंड एग्जांपल्स। एक अच्छा सेट ऑफ एग्जांपल आपके पास है, विल बी यूजफुल। एक तो ये कि उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो और अच्छी बात है, पता हो तो सीधे टिक मारेंगे, भले क्यों ये नहीं मालूम हो। इट्स ऑलवेज यूजफुल। अगर आपको नहीं भी मालूम हो कि हाउ वी प्रूव्ड दैट दिस इज ग्रेटर देन n/2, तो इससे ये सच छुप जाएगा क्या? झूठ बन जाएगा। है तो है, नहीं मालूम होना का मतलब थोड़ी हर चीज गलत ही होती है। जो या तो हम ना ऐसे इकट्ठे करने रिजल्ट दो स्टेज में ना, एक तो हमें याद तो रहे कम से कम, एंड लेटर व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन वी आर फ्री, वी कैन वर्क ऑन देम टू प्रूव, टू ब्रश अप आवर ओन मैथमेटिकल लॉजिक्स ना। आप यही करते हो, आप रिजल्ट्स अच्छे याद रहेंगे आपको ना जब आप फुर्सत से बैठो, देन ट्राई टू वेरीफाई देम बाय योर ओन रिजल्ट्स। वो फुर्सत से बैठने का काम है जिसमें अपनी मैथ्स को ब्रश अप करते हैं। दैट इज व्हाट हाउ वी लर्न मैथमेटिक्स। वी रिटेन रिजल्ट्स व्हाइल गोइंग थ्रू एंड देन लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ आवर रिटेन रिजल्ट सेट वी ट्राई टू ब्रश अप। उसमें से निकालते हैं और देखते हैं कि हमें समझ में आया, प्रूफ कर पा रहे नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तो वहां से मूड बंद करो, ठीक है, फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। देन वी गो फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन इन द बुक्स। उस चक्कर में कुछ और पढ़ जाते हैं एंड दिस साइकिल गोज ऑन। एंड यही तरीका तो हम अपने आप को इंप्रूव करते चलते हैं, है ना। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, आपके लिए अच्छा सेट ऑफ एग्जांपल बहुत जरूरी है। तो समेशन 1 by n डाइवर्जेंट समेशन, क्योंकि वो दिखा उसकी एसओपीएस मेरी कैसी आई थी, इंक्रीजिंग आई थी, और कन्वर्जेंट नहीं है। मोनोटोनिक हमेशा डाइवर्ज ही करती है, अगर कन्वर्ज नहीं करती है तो वो भी चर्चा करते हैं। अगला एग्जांपल कोई है, छोड़ दे अभी। अच्छा, 1 by n स्क्वायर भी है एंड दैट इज कन्वर्जेंट। हाउ? ओहो, मुझे यही मालूम था, कोई ना कोई बोलेगा पी टेस्ट, टेलीस्कोप से किया था हम लोगों ने। अभी तो पी टेस्ट जानते भी नहीं, हम लोग जानते हैं। समेशन, जब आप बिल्कुल कोर से कोई चीज प्रूव करते हो ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज होती है। बिल्कुल कोर से प्रूव कर रहे हैं, समेशन 1 by n स्क्वायर। सीक्वेंस पहले तो लिखो, सबसे पहले सीक्वेंस एंड देन सीक्वेंस an, दैट इज सीक्वेंस 1 by n स्क्वायर टेंस टू 0, लिमिट an इक्वल टू 0, हैंस सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। क्वेश्चन किसका है? समेशन an का, सीरीज an का ना। नाउ समेशन an इज समेशन 1 by n स्क्वायर एंड Sn इक्वल टू 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2
स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो 1/n स्क्वायर। इसको आपने लिख लिया 1 प्लस समेशन 1/r स्क्वायर r वेरी फ्रॉम 2 to n। ऐसे लिखा है ना। नाउ सीक्वेंस Sn इज इंक्रीजिंग, दिख रही है ना, इंक्रीजिंग। Sn प्लस 1 माइनस Sn क्या आएगा? 1/n प्लस 1 स्क्वायर, पॉजिटिव ऑलवेज। एज रीजन, यार बगल रीजन लिख लीजिए कि Sn प्लस 1 माइनस Sn करोगे तो ये 1/n प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव। रीजन भी लिख लिया आपने। नाउ Sn इक्वल टू 1 प्लस समेशन 1/r स्क्वायर r वेरी फ्रॉम 2 to n इज लेस देन 1/1 समेशन r इंटू r माइनस 1 और r वेरी फ्रॉम 2 to n, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इंप्लाइज Sn इज लेस देन 2 माइनस 1/n इंटू n, नहीं ये भी नहीं, n प्लस 1। दैट मीन्स लिख सकता हूं ऐसे में कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट। दिमाग में आता है हमेशा ना कि पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे शायद कैंसिल हो जाए, तो ये 1/r r प्लस 1 लिखा हुआ है। यू कैन राइट 1 प्लस समेशन 1/r माइनस 1/r माइनस 1 r माइनस 1 और यहां पर r, ऐसे है ना, और r वेरी फ्रॉम 2 to n, और इससे ये लिख दिया। सो क्या प्रूफ हुआ? इंक्रीजिंग, बाउंडेड अबव, इंक्रीजिंग, बाउंडेड अबव, हैंस कन्वर्जेंट, हैंस सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट। लिमिट Sn इज 2, सो समेशन 1/, ये तो कुछ और भी नहीं है, n स्क्वायर इज लेस देन 2, इतनी कह सकता हूं मैं। उसकी लिमिट थोड़ी निकाली हमने, ये इससे लेस है। इक्वल होता तो मैं निकाल देता। जिस पे भी सम आएगा, सम नहीं पता, बट अपर बाउंड मिल गई सम की अपर बाउंड मिल गई। 2 नहीं हो सकती, या 2 ही हो सकती पॉसिबिलिटी देखा जाए तो लगता है 2 भी नहीं होगा। 5 स्क्वायर बाई 6 आता है परहैप्स, नहीं 1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, फूरियर में पढ़ा था। 5 स्क्वायर बाई 6, 5 स्क्वायर मतलब 3.149 समथिंग 6 ना, 2 से तो वैसे भी नीचे है, ठीक है। वो 12 होना चाहिए ना कम से कम, कंफर्म। तो क्या प्रूफ हो गया? समेशन 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, समेशन 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। लुक इट हियर नाउ, समेशन 1/n टू द पावर r n टू द पावर p, p इज ग्रेटर देन 1, ये लिखा। वी नो n टू द पावर p इज ग्रेटर देन n स्क्वायर इफ p इज ग्रेटर देन 2 कर है ना, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कर रहे हैं, और इक्वल टू व्हेन p इज ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 1/n टू द पावर p इज लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ये हो गया। नाउ फॉर समेशन 1/n टू द पावर p, Sn इक्वल टू 1 प्लस 1/2 पावर p एंड so on 1/n टू द पावर p Tn, एंड समेशन 1/n स्क्वायर Sn इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड so on 1/n स्क्वायर। सो Tn इज लेस देन Sn, है ना, इसी से Tn इज लेस देन Sn, एंड सीक्वेंस Tn इज मोनोटोनिक, and sequence Sn is convergent and bounded, hence bounded। अभी पढ़ा हाँ पीछे हमने, जो convergent होती है वो bounded होती है। so Tn is less than Sn less than equal to m, so sequence Tn is bounded and monotonic convergent। मैं sequence नो p टेस्ट अभी तक हमने उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो कोर सीक्वेंस पढ़ के आए उसका इस्तेमाल करें ना पहले से, वो भी मजबूत बनेगा थोड़ा सा कि भाई सीक्वेंस का आइडिया हमको है, या पोल खुलेगी कि सीक्वेंस भूल रहे हैं बार बार हम। सीक्वेंस इफ यू प्रूव मोनोटोनिक देन जस्ट रिमेन टू शो बाउंडेड। हमने क्या किया, ये दिख रहा है मुझे मोनोटोनिक है, इसमें ऐड करते आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करते आ रहे हैं, दिख ही रहा है ना साफ सब, ये मोनोटोनिक है कि नहीं है। T1 1, T2 1/2 p
ऐड करता रहे कुछ ना कुछ ना, तो Tn इज व्हाट, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव. सो इसी से टेस्ट बना लेंगे आगे, हम कंपैरिजन टेस्ट बनाएंगे इसी से. अभी तो कोर करके देख रहे हैं केवल. ठीक है. समेशन 1/n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट व्हेन p इज ग्रेटर देन 2. अभी 2 प्रूफ किया आपने, 2 के लिए प्रूफ किया, ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ कर दिया आपने. 2 के लिए प्रूफ किया था, अब ग्रेटर देन 2 के लिए प्रूफ कर दिया आपने. 1 पे नहीं है, 1 और 2 के बीच में टेस्ट करना है. अभी 1 पे नहीं है, 1 और 2 के बीच में टेस्ट करना है. ठीक है, डन. हाँ जी. अब ये आया, कैसे आया? यहां पर ये देखो ना, रखते जाओ इसको. पहला टर्म क्या आएगा? 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 1/n - 1/n + 1. सब कैंसिल हो जाएंगे बीच के, क्या बचेगा? ये 1 - 1/n + 1, और एक 1 ऑलरेडी ये था, तो ये 2 - 1/n + 1. अच्छा, n तक ही जा रहा है, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होते. ठीक है, n ही आएगा. ये माइनस कर रखा है ना यहां पर, -1/n तक आएगा. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. 1/n. बाकी तो दिक्कत नहीं है ना. सो वी आर लुकिंग फॉर फ्यू सीरीज विच आर कन्वर्जेंट इन दिस सेंस और दैट सेंस. ठीक है. और कैसे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि Sn मिल जा रहा है मुझे, और Sn के बाद जो Sn बना रहे हैं उसका आइडिया मिल जा रहा है. Sn का आइडिया मिलता जा रहा है ना. वी आर प्रूविंग समेशन an आर कन्वर्जेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स SOPs, एंड इन ऑल दीज एग्जाम्पल वी हैव द आइडिया अबाउट SOPs. log n. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.